days don't seem so wet. Stormy nights don't stay. From the moment that we met, you were worth the wait. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Talk for hours and never slept. Two silhouettes on the concrete. ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ ਤਾਂ 2 ਤੋਂ 4 ਬਣਦੇ ਆ, 4 ਤੋਂ 8 ਬਣਦੇ ਆ, 8 ਤੋਂ 16 ਬਣਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ, ਸਾਡਾ ਨੈਟ ਉਹ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਟੀਮ 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਆ, ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ 1 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਨਕਮ ਡੇਲੀ ਦੀ 20 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਮ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟ ਆ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਵਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ 10,000 15,000 20,000 30,000 50,000 ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਉਣਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਨੈਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਾਰਡ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਰਿਵਾਰਡ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਵਾਰਡ ਆ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। 2 ਕਰੋੜ 9 ਲੱਖ ਦੇ ਇਹ ਰਿਵਾਰਡ ਨੇ, ਕੱਲੇ ਰਿਵਾਰਡ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀਕਲੀ ਇਨਕਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਮੰਥਲੀ ਪੈਸਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੈਂਟਸ ਭਰਾ, ਕੋਈ 12,000 ਰੁਪਇਆ ਮੰਥਲੀ, ਕੋਈ 24,000, ਕੋਈ 36,000, ਕੋਈ 48,000 ਮੰਥਲੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਵਾਰਡ, ਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਪਰਸਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰੋਥ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਹੁਣੇ ਪਿਛਲੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਨਕਮ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀ ਜਨ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸੋ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ 27 ਸਾਲ ਦਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਵਾਮੀ ਜਨ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਇਹ
परफॉर्मेंस बोनस जिहड़ा हैगा कंपनी ने शुरू किया है। ये परफॉर्मेंस बोनस सानू उदों मिलदा जदों सानू कंपनियां दे विच 3-4 साल हो जांदे काम करदिआं, पर कंपनी ने स्टार्टिंग दे विच ही अज जुड़दा है कोई परिवार कंपनी दे नाल, कोई अज लीडर आउंदा है तां इस परफॉर्मेंस जिहड़ा बोनस सानू लै सकदा है। एक बहुत वड्डी अचीवमेंट, बहुत वड्डी खासियत है कंपनी की। सो स्वामी जन अपने दरमियान पहुंचने वाले हैं। जीवन नंगल दे सरपंच साहब पहुंच चुके ने, उन्हां दे नाल होर भी सज्जन जो मोतबार हन, समाज सेवी हन, बड़ा अच्छी समाज अच्छे ढंग दे नाल समाज दी सेवा कमा रहे हैं। जिहड़े समाज सेवी हुंदे ना उन्हां नूं दिलों सलूट करना चाहिए, क्योंकि अपने परिवार नूं तां हर कोई सामभदा है, पर समाज नूं कोई सामभदा है। संस्थान की ओर से आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरी एक ना आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब तक सेशन चलेगा ना, एक स्माइल आपके फेस में होनी चाहिए। होगी? रिक्वेस्ट ग्रांटेड? एक बार सभी हम सब की जेबी, यस, क्या बात है। तो स्माइल तो मुझे बहुत कम नजर आ रही है। एक बार अच्छे से कि वी आर फ्रॉम स्मार्ट विज कंपनी और हमारी एक फैमिली यहाँ बैठी है। यस, ओके, दैट्स ग्रेट। तो right now I want to discuss, explain something. I want to highlight the points regarding Divya Jyoti Jagrati Sansthan. It is an international non-profit socio-spiritual organization founded and headed by Divya Guru Sarv Shri Ashutosh Maharaj. I request please, next slide please. जी हाँ, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान एक अंतरराष्ट्रीय सामाजिक संगठन है जो आध्यात्मिक जागरूकता और समाज सेवा पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य मानवता को सही मार्गदर्शन देना है और सामाजिक सुधार में योगदान करना है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान हमेशा अपने सेमिनार्स, वर्कशॉप, एक्सपर्ट सेशन, मोटिवेशनल टॉक्स, मोटिवेशनल सेशंस और अन्य सामाजिक कार्यों के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन प्रोत्साहित करता आ रहा है। Yes, we can say that one of the distinguishing feature of Divya Jyoti Jagrati Sansthan is its commitment to welfare initiative. हमारी बहुत सारी शाखाएं भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। And it has inspired countless individuals to meaningful and purposeful lives. दिव्य ज्योति जागृति संस्थान बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में काम करता आ रहा है, जैसे कि मंथन, यह एक सामाजिक संगठन है जो शिक्षा और संस्कृत समृद्धि को प्रमोट करता आ रहा है। कामधेनु, इसका मुख्य उद्देश्य गौ माता की सेवा, सुरक्षा एवं संरक्षण करना है। I would like to share that Divya Jyoti Jagrati Sansthan is honored by the Indian government as the best गौशाला of India North Zone. एक बार तालियां तो बजती है। और मैं आपसे अनुरोध करूंगी, 1 hour का डिस्टेंस है, नूर महल हमारा आश्रम है, अब वहां आइए और गौशाला देखकर जाइए, आपको बहुत आनंद मिलेगा। आओगे सभी? बीच बीच में मैं टेस्ट कर रही हूँ आपका जोश कितना है। हाउ इज द जोश? स्मार्ट बीज वालों, हाँ जी, हाउ इज द जोश? हाई, लो लग रहा है मुझे। हाउ इज द जोश? हाई। आगे आगे वाले ना अच्छे से मोटिवेटेड है, पीछे वाले, हाँ जी, पीछे जो बैठे हैं, आवाज आ रही है मेरी आप तक? मेरी आवाज आ रही है? यस। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है अंतर्दृष्टि।
ये एक वेलफेयर प्रोग्राम है जो विजुअली फिजिकली चैलेंज पीपल के लिए है। संतुलन जेंडर इक्वालिटी प्रोग्राम, अरोध्या होलिस्टिक हेल्थ प्रोग्राम, समाधान डिजास्टर रिलीफ प्रोग्राम। जहां जहां डिजास्टर कभी भी आते हैं हमारे देश में, तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान हमेशा समाज की सेवा के लिए पहुंच जाता है। मूविंग अहेड, आज हमारे समक्ष साध्वी मेधावी भारती जी आ चुके हैं। उनको मैं मंच पर बुलाने से पहले एक छोटी सी वार्म अप एक्टिविटी हो जाए। आर यू रेडी? क्योंकि ना एक्साइटमेंट होनी चाहिए, है ना। जब एक्साइटमेंट होगी, पहले थोड़ा सा अपने आप को ना थोड़ा रिलैक्स करेंगे। उसके बाद जब साध्वी जी अपने पॉइंट्स रखेंगे ना, आप बहुत अच्छे से उसको एनालाइज कर पाओगे, अंदर तक लेकर जाओगे। आप रेडी हो वार्म अप एक्टिविटी के लिए? अभी आवाज वैसे नहीं आई, मैंने तो बहुत बुलाना आना है आपसे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। काउंटिंग आती है सभी को? हाँ जी आती है ना। कहाँ तक आती है? 100 तक? बस काउंटिंग वाली गेम है, हमने सिंपल ही रखी हुई है। टारगेट्स मिलते हैं है ना, 1 2 3 काउंटिंग हमारे चलते हैं, बस वही चीज करनी है। अब हमारा है क्या, आप थोड़ा सा एक पीछे होकर सोचा कि हमारी ऑडियंस भी देख सके कि आज की क्या है, और आप भी एक बार स्क्रीन की तरफ देखना साइड होकर। करना कुछ नहीं है, हमने जस्ट काउंटिंग करनी है 1 2 3 4 5 लाइक दैट, 1 by 1। इन्होंने बीच में रुकना नहीं है और ना ही गलत बोलना। ओपीएससी रुकेंगे गलत बोलेंगे तो ये आउट हो जाएंगे, है ना। तो उनको करना क्या है, सिंपल है। जब कोई भी नंबर 3 से डिवाइड होता है, जैसे 3 6 आगे 9 है ना, तो हमने उसको क्या बोलना है, हमने वो नंबर नहीं बोलना, क्या बोलना है, स्मार्ट। क्या बोलना है, स्मार्ट। जैसे कि एक एग्जांपल 1 सर बोलेंगे 2, नेक्स्ट क्या बोलेंगे 3, स्मार्ट। 3 बोलेंगे तो आउट। ऐसे ही जो नंबर 5 से डिवाइड होंगे उनको क्या बोलना है, नहीं पढ़ो, बिज। तो बड़ी कंपनी का, आपकी कंपनी का क्या नाम है, स्मार्ट बिज। स्मार्ट बिज ना, आजकल तो स्मार्ट का ही जमाना है ना, तो स्मार्ट बिज, राइट। और अगर कोई नंबर दोनों से डिवाइड हो, 3 से भी 5 से भी, फॉर एग्जांपल 3 से भी 5 से भी, स्मार्ट बिज। डन। ये छोटी सी गेम है। अब इसको फास्ट करना है, धीरे धीरे नहीं करना, ठीक है। मैं अपना माइक आपके पास लेकर आती जाऊंगी और जहां आप रुके या सोचा आप आउट, और फिर देखते हैं लास्ट तक कौन विनर होता है हमारा, राइट। और उसके साथ साथ आपकी तालियों की भी आवाज आनी चाहिए। इनको हम मोटिवेट करेंगे कि अच्छे से पार्टिसिपेट करें, राइट। आर यू रेडी गाइस? क्या बात है। 1 2 स्मार्ट। 20 अच्छा अभी ये आएगा 4 20 अच्छा ठीक है 5 3 6 7 जल्दी फास्ट स्मार्ट। 8 2 नेक्स्ट तो नेक्स्ट के आप आगे जो जल्दी आउट 1 नहीं आउट आउट मैं जाना है नहीं आउट जल्दी नहीं कौन सा नंबर नेक्स्ट 10 नहीं आउट 11 10 तक तो सब अच्छे से पहुंच गए। तो ये होती है माइंड गेम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये होती है माइंड गेम कि किस तरह माइंड को हमने शांत रखना है ना। तो चलिए अब थोड़ी सी एक्टिविटी हो गई है, अब आगे का हम कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए join us in welcoming Sushri Sadhvi Medhavi Bharti ji, a multi-talented personality, and she has done her post-graduation in computer science. दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के हेडेड एंड फाउंडेड सब श्री आशुतोष महाराज जी के शिष्य, जो पूरे भारत में कथाएं करते आ रहे हैं, जैसे कि शिव कथा, कृष्ण कथा, राम कथा आदि, और साथ में मोटिवेशनल टॉक्स भी देते हैं। बहुत ही गर्व की बात है कि वो आज हमारे समक्ष बैठे हैं। टुडे वी शुड फील ब्लेस्ड कि आज हमें साध्वी जी से, उनके अपने अनुभव और मोटिवेशनल डिवाइन टॉक से आज हम प्रेरित होने जा रहे हैं। आर यू एक्साइटेड टू हियर हर टुडे? यस अगेन, आर यू एक्साइटेड? यस।
देखो हमारी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, हमारी लाइफ में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं अपने को लेकर। तो आज आपको इस चीज का सलूशन मिलेगा दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से चल रही ड्राइव आओ डी स्ट्रेस करें। ड्राइव का क्या नाम है? आओ डी स्ट्रेस करें। ठीक है जी, तो मैं अनुरोध करती हूँ साध्वी मेधावी भारती जी से कि वे मंच पर आए। जोरदार तालियां। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आपने अपनी लाइफ में फोटो तो जरूर खिंचवाई होगी ना कभी ना कभी। यस और नो? यस और नो? आपकी एक्साइटमेंट बनी रहनी चाहिए। आपने अपनी लाइफ में फोटो बहुत बार खिंचवाई है और मोस्टली आपने देखा होगा कि जब भी आप अपनी फोटो खिंचवाते हैं तो फोटोग्राफर क्या कहता है मोस्टली? से चीज कहता है ना, कि आप चीज बोले। क्यों कहा जाता है ये बता सकते हैं? इसलिए कहा जाता है कि जब हम चीज बोलते हैं तो हमारे जो फेस का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा बन जाता है कि ऐसे लगता है कि हम हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन 19th सेंचुरी के अंदर ये माना जाता था कि जो लोग हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, वो अच्छे लोग नहीं होते। ये गरीबी की निशानी है। जो अनएजुकेटेड लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, वो लोग हंसते मुस्कुराते हैं। इसलिए उस टाइम में चीज नहीं बोला जाता था फोटो खिंचवाते हुए, उस टाइम बोला जाता था प्रून्स, ताकि फेस का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे बन जाए जैसे कि आप बहुत धीर गंभीर हैं। उस टाइम ऐसी मान्यता थी कि आप हंसोगे तो आप अपना लेवल जो है, अपना स्तर जो है नीचे गिरा दोगे। स्लाइड नंबर 2। तो आप देख रहे हैं इस समय हमारे सामने दो पिक्चर्स हैं। जानते हैं ये पिक्चर्स किन की हैं? जानते हैं? इनमें से एक है मार्क ट्वेन और एक है अब्राहम लिंकन। 19th सेंचुरी के अंदर ऐसे ही फोटो खिंचवाई जाती थी जिसमें चेहरे पर किसी भी प्रकार की कोई स्माइल नहीं होती थी और ये समझा जाता था कि अगर हम स्माइल नहीं दे रहे हैं तो हम एजुकेटेड हैं, समझदार हैं, विवेकशील प्राणी हैं। और उस समय ऐसा माना जाता था। क्यों माना जाता था? क्योंकि उस टाइम के जो लोग थे वो लोग हंसी के क्या फायदे हैं, मुस्कुराने के क्या फायदे हैं, वो उससे अपरिचित थे। वो जानते ही नहीं थे कि वास्तव में मुस्कुराहट के फायदे क्या होते हैं। हमारे साइंटिस्ट एक रिसर्च उन्होंने की और वो रिसर्च बताती है कि जब हमारा जो माइंड है, हमारा जो ये ब्रेन है, हमारा मस्तिष्क है, जब अच्छा फील करता है, उसे अच्छी परिस्थितियां मिलती है, तो हमारा माइंड हमारे फेस के जो मसल्स होते हैं, फेस के जो मांसपेशियां होती हैं, उन्हें सिग्नल भेजता है। और जब सिग्नल भेजता है तो फेस पर मुस्कुराहट खिल जाती है। और जब मुस्कुराहट खिलती है तो ये जो फील गुड वाले जो सिग्नल हैं वो वापस ब्रेन में जाते हैं। वापस कहाँ पहुंचते हैं? मस्तिष्क में पहुंचते हैं। और जब मस्तिष्क में पहुंचते हैं तो मस्तिष्क, हमारा ब्रेन रिएक्ट करता है उस चीज के लिए। और उसके लिए वो क्या करता है? न्यूरोट्रांसमीटर्स यानी कि एंडोर्फिन्स जिन्हें कहा जाता है, फील गुड वाले जो हार्मोन्स होते हैं उसे स्रावित कर देता है या सीक्रेट कर देता है। और इसके हमारे लाइफ में बहुत फायदे हैं। पहला, ये नेचुरल पेन किलर होता है। आप देखो जब हमें कोई दर्द होता है तो हम क्या खाते हैं?
क्या खाते हैं? पेन किलर खाते हैं। लेकिन ये जो मुस्कुराहट है, इसे साइंस कहती है कि एक नेचुरल पेन किलर का काम करती है, जो हमें स्ट्रेस फ्री भी करती है और हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी बढ़ा देती है। आप देखो, आप स्मार्ट बिज कंपनी में काम करते हैं, आपको टारगेट्स मिलते हैं और आपकी यदि बेटर प्रोडक्टिविटी होगी तो आप आगे बढ़ जाएंगे। आपकी प्रोडक्टिविटी घट गई तो आप या तो आउट हो जाएंगे या फिर पीछे रह जाएंगे। इसीलिए अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री करने के लिए आपको एक काम करना है। स्लाइड नंबर 3, क्या करना है बता सकते हैं? कुछ पता लग रहा है? क्या? स्माइल करनी होगी। मुस्कुराहट हमारे चेहरे पे खिली होनी चाहिए। इसलिए सबसे पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, सभी ने अपने चेहरे पर एक सुंदर सी प्यारी सी मुस्कुराहट लेकर आना है। हाँ जी, मजा नहीं आया? थोड़ा सा और, सभी बिल्कुल ऐसे ही। आप देखो, हमने अभी जाना मुस्कुराहट के हमारे जीवन में क्या लाभ है। और हम अपने बचपन में हम देख रहे हैं यहाँ एक छोटा बच्चा मुस्कुरा रहा है। इस बचपन को एक बार याद कीजिए, जब हम इस लाइफ में थे, जब इस उम्र में थे, तो हमारे फेस के ऊपर एक दिन में कम से कम 400 बार हम ऐसे खिलखिला करके हंसते थे। 400 बार, 400 टाइम्स। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए, वैसे वैसे हमारे चेहरे की जो मुस्कुराहट है वो 400 से घटकर लगभग 15 तक पहुंच गई है, और कई बार तो उससे भी कम, और कई बार तो 0 तक भी पहुंच जाती है। क्यों? इसका रीजन क्या है? कोई बता सकता है इसका रीजन क्या है? इसका एक ही रीजन है जो आज हमारे इस समाज में देखने को मिल रहा है, वो है हमारी स्ट्रेस। आप इसे टेंशन कह लें, डिप्रेशन कह लें या एंजाइटी कह लें, कुछ भी कह लें। बहुत तरह की टेंशन है हमें, चाहे हमारी फैमिली को लेकर हो, चाहे पैसों को लेकर हो, चाहे हेल्थ को लेकर हो, चाहे हमारे जो काम हमें टास्क मिलते हैं उसको लेकर के हो, या कुछ और। लिस्ट बहुत लंबी है। एक टेंशन खत्म होती नहीं कि दूसरी आ जाती है, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, और ये लिस्ट आगे आगे बढ़ती चली जाती है और मुस्कुराहट जीवन से गायब हो जाती है। क्या किया जाए? क्या स्ट्रेस सच में इतनी खतरनाक होती है हमारे जीवन के अंदर कि हमारे जीवन से मुस्कुराहट ही चले जाए, हमारे जीवन का चैन ही चला जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एक साइकोलॉजी की एक लेक्चरर हैं जिन्होंने PhD किया है साइकोलॉजी से, और हेल्थ साइकोलॉजिस्ट भी हैं, शारीरिक रूप से एक मनोवैज्ञानिक भी हैं, जो लोगों को अच्छी गाइडेंस देती हैं। वो अपनी एक बुक, जिनका नाम है कैली मैकगोनिगल, वो अपनी एक बुक में लिखती हैं द अपसाइड ऑफ स्ट्रेस, व्हाई स्ट्रेस इज सो गुड। वो अपनी इस बुक में कैली मैकगोनिगल लिखती हैं कि जीवन में हमेशा जो स्ट्रेस होता है वो बुरा ही नहीं होता। इस बुक के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखती है, मीनिंगफुल लाइफ इज अ स्ट्रेसफुल लाइफ। आपके जीवन में आपका जो स्ट्रेस है, आपकी जो चिंता है, वो आपकी लाइफ की मीनिंग को, उसकी वैल्यू को बढ़ा दिया करती है। और इसी बुक में वो लिखती हैं कि ईयर 2005 एंड 2006, 2005 और 2006 में 121 देशों के लगभग 1,25,000 लोगों के ऊपर एक रिसर्च की गई, और उनसे रिसर्च के अंदर उनसे एक प्रश्न पूछा गया, एक क्वेश्चन पूछा गया कि क्या कल आपने अपनी लाइफ में स्ट्रेस फील किया था? और ये जो रिसर्च थी, ये रिसर्च 2 तरह के देशों में थी, एक थी डेवलप्ड कंट्रीज और एक थी डेवलपिंग कंट्रीज, यानी कि विकसित देश और विकासशील देश। इन 2 प्रकार के देशों में ये रिसर्च की गई। और उस समय जो रिसर्चर्स थे
वो ये मान रहे थे कि जो डेवलपिंग कंट्री है, जो विकास की ओर बढ़ रही है, ऐसे देशों का जो स्ट्रेस लेवल होगा, जो स्ट्रेस इंडेक्स होगा, वो बहुत ज्यादा होगा। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, विकसित देश हैं, उनका स्ट्रेस लेवल बहुत कम होगा। लेकिन हैरानी हुई रिसर्चर्स को कि जब रिसर्च की रिपोर्ट्स उनके सामने आई तो वो हैरान रह गए कि रिजल्ट बिल्कुल ऑपोजिट था। जहां पर अफ्रीका के ऐसी कंट्रीज जहां पर बहुत ज्यादा वायलेंस है, हंगर है, भूख है, पोवर्टी यानी गरीबी है, और हाई लेवल ऑफ करप्शन है, भ्रष्टाचार बहुत चरम सीमा पर है, ऐसे देशों के लोगों का जो स्ट्रेस इंडेक्स था, उनके स्ट्रेस लेने का जो लेवल था, वो सिर्फ 5% था, 5% ओनली। लेकिन जो डेवलप कंट्रीज थे, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसे देश, हैरानी हुई रिसर्चर्स को कि उनका स्ट्रेस इंडेक्स जो था, वो स्ट्रेस इंडेक्स लगभग 43%, 43% था। और उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा क्यों हुआ। और उसके बाद काफी सोचने के बाद रिसर्चर्स ने एक बात कही। वो कहते हैं कि जो इंसान खुश है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी लाइफ स्ट्रेस फ्री है, या फिर जो अपने जीवन के अंदर स्ट्रेस फ्री है, इसका मतलब ये भी नहीं कि वो अपने जीवन में, अपनी लाइफ में खुश होंगे ही होंगे, ये जरूरी नहीं है। इसलिए फिर आगे इस रिसर्च को और आगे बढ़ाया गया 2013 में, 2013 के अंदर जब रिसर्च की गई यूएस के एडल्ट्स के ऊपर, बड़े लोगों के ऊपर, जब उनसे पूछा गया क्या आप अपनी लाइफ को मीनिंगफुल मानते हैं या नहीं, तो रिसर्चर्स के सामने एक बात आई, वो ये कि जो अपनी लाइफ को स्ट्रेसफुल मानते थे, उनकी लाइफ को वो मीनिंगफुल भी मानते थे, क्योंकि स्ट्रेस और मीनिंग का लाइफ में बहुत गहरा रिश्ता होता है, एक इंटरकनेक्शन होता है। हमारे भी सामने बहुत सारी कंडीशंस आती हैं, कभी हमें हमारे काम को लेके, टास्क को लेकर के, कभी परिवार को लेकर के, कभी हमें अपना रिलेशनशिप जो है उसे स्ट्रॉन्ग करना है। ये सारे बहुत तरह के टास्क हैं और ये सारे के सारे डिफिकल्ट टास्क हैं, मुश्किल कार्य हैं, और इस मुश्किल कार्य में स्ट्रेस आना एक स्वाभाविक बात है, एक नॉर्मल बात है। और आगे यही ऑथर कैली मैकगोनिगल अपनी इस बुक में कहती है कि मेरी एक फ्रेंड थी जो साइकोलॉजी में पीएचडी कर रही थी, और जिस समय वो पीएचडी कर रही थी तो उस समय वो अपने उनको सेल्फ डाउट हो रहा था कि मैं पीएचडी कर पाऊंगी या नहीं। जैसे अब आप लोग हैं, आपको टारगेट्स मिलते हैं कि आपको ये टारगेट कंप्लीट करना है, इसे अचीव करना है, आप में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है, आप कहोगे कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। लेकिन यदि आपको अपने आप पर ही शक हो जाए, पता नहीं मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, तो फिर क्या होता है, हमारे जो चांसेस होते हैं काम करने के, वो बड़े ही कम हो जाते हैं। ऐसा ही उनके साथ हो रहा था कि वो सोच रही थी पता नहीं मैं पीएचडी कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। तो एक रात वो अपने कमरे में पीएचडी का काम कर रही थी, किसी ने दरवाजा नॉक किया, और जब उन्होंने दरवाजा खोला तो उनके सामने उनका एक फ्रेंड खड़ा था। उस फ्रेंड ने कहा, एक ठंडी रात और एवरेस्ट के किनारे पर, और कहकर चला गया। अब कैली मैकगोनिगल कहती है कि उस समय मेरी फ्रेंड सोचने लगी कि वास्तव में जीवन की सच्चाई तो यही है, जिसने एवरेस्ट को के चोटी पर पहुंचना है, उसकी ऊंचाई को प्राप्त करना है, वो जानता है कि जब मैं जाऊंगा तो कई ठंडी रातों का मुझे सामना करना पड़ेगा, भूख प्यास को भी झेलना पड़ेगा, मुझे मेरी लाइफ के अंदर बहुत सारे स्ट्रगल्स को, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फिर कहीं जाकर मैं एवरेस्ट तक पहुंचूंगा। क्योंकि ये एक नॉर्मल बात है, आप अपने जीवन में कोई भी गोल आप अपने लिए सेट करते हो, कोई लक्ष्य निर्धारित करते हो, तो उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको ऐसे ही एफर्ट्स करने पड़ते हैं जैसे इस समय आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं। अब ये व्यक्ति जो पहाड़ पर चढ़ रहा है, इस समय
क्या ये आसानी से चढ़ पा रहा है? बताएंगे आप? बताएंगे? यस और नो? नहीं, बहुत डिफिकल्टीज है इस समय इसके सामने, और वो जानता है मैं इस डिफिकल्टी को पार करके ही आगे बढ़ पाऊंगा, अपने लक्ष्य तक पहुंच पाऊंगा। इसके सामने चैलेंजेस आएंगे, हमारे सामने भी आते हैं, और वही चैलेंजेस जैसे हम क्या कह देते हैं, स्ट्रेस। ये कुछ नहीं, सिर्फ एक प्रोसेस है। मैं आपके सामने एक एक्टिविटी रखना चाहूंगी, 4 वॉलंटियर्स आपके बीच में से बुलाना चाहूंगी, कोई भी 4। आ जाइए। आप एक लाइन में सीधे खड़े हो जाइए, एक लाइन में, और इन्हें इस समय एक एक स्पून और एक एक नींबू दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? स्पून और चम्मच और नींबू दिया जा रहा है। आपको बता रहे हैं, सबको दिख रहा है ना? सबको, पीछे वालों को? हाँ जी, आप यहाँ खड़े हो जाइए सीधे, बिल्कुल। ये आप लोगों की स्टार्ट लाइन है, और ये जो यहाँ पर ये जो पर्दा है, ये आपके फिनिश लाइन है। आपने करना क्या है, अपने मुंह में नींबू को, अपने मुंह में चम्मच डालना है और उस पर नींबू रखना है, और आपके पास में सिर्फ 10 सेकेंड्स हैं। आपने यहाँ से यहाँ तक चल के जाना है। कीजिए, म्यूजिक लगा सकते हैं आप। जब मैं कहूंगी स्टार्ट, तब आपने स्टार्ट करना है। स्टार्ट। मेरा वेरी गुड। सब इनके लिए तालियां बजाएंगे। आगे आ जाइए। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, इस टास्क को करने में आपको कितनी दिक्कत आई? इस टास्क को करने में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आई, इजीली हो गया। तो फिर अब आप एक और टास्क कीजिए, वापस अपनी स्टार्ट लाइन पे आ जाइए। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, वापस चम्मच अपने मुंह में, नींबू साथ में। अब आपने वापस फिनिश लाइन की ओर जाना है, लेकिन ऐसे नहीं, एक टांग पर जाना। हाँ जी, स्टार्ट। जब मैं कहूंगी स्टार्ट, तो आपने स्टार्ट करना है, और तालियां बजती रहनी चाहिए, इनका हौसला बढ़ता रहे ताकि। स्टार्ट। कोई भी अपने टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाया। अब इनसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी मैं, क्या इस टास्क को करते हुए आपको थोड़ी मुश्किल आई? बहुत अच्छी, बिल्कुल आई। लेकिन क्या इस टास्क से जब आपका नींबू नीचे गिर गया, तो क्या आप में नेगेटिविटी आई, या ऐसा मन में कुछ आया कि मैं तो बिल्कुल बेकार हूं, कुछ नहीं कर सकता? थैंक यू, आप जा सकते हैं। आपने देखा, पहले इस टास्क को हमने बिल्कुल सिंपल वे में किया, किसी को मुश्किल नहीं आई, और सबने इजीली इस काम को पूरा कर लिया। लेकिन दूसरी बार क्या हुआ, उस टास्क को थोड़ा सा हमने डिफिकल्ट किया, थोड़ा सा स्ट्रेस माइंड पर आया, और उस टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाए हालांकि, लेकिन फिर भी इनके मन में कोई परेशानी का भाव, ऐसा कुछ भी नहीं आया। ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है। कई बार जब हमारे जीवन में स्ट्रगल आता है, तो हमें भी एक ही बात सोचनी चाहिए, जो कैली मैकगोनिगल कहती है, एक और ठंडी रात एवरेस्ट के किनारे में। जब आप अपने लक्ष्य को डिफिकल्टीज आने के बावजूद आप उसे पूरा कर लेंगे, तो आपके मन में एक खुशी आएगी, आपको अच्छा लगेगा। और जब आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे ना, तो आपको अपना वो जो स्ट्रेस आपने अपने लाइफ में फेस किया था, वो स्ट्रेस के बारे में आप सोचेंगे भी नहीं। और यही बात एक पेरेंट्स के लिए भी है। आप देखो, एक माता पिता से यदि पूछोगे, उनके लिए अपने छोटे से बच्चे को पालना बहुत स्ट्रेसफुल काम होता है कि नहीं होता? बता दीजिए, होता है। लेकिन जब वही उस पेरेंट्स से पूछोगे कि इतना स्ट्रेसफुल काम आप क्यों कर रहे हो, तो वो क्या कहेंगे, चाहे ये काम
हमारे लिए स्ट्रेसफुल है, लेकिन हमारे लिए वैल्यूएबल भी है, कीमती भी है, क्योंकि उस समय वो अपने बच्चे की जब पहली बार मुस्कुराहट देखते हैं, उसे पहली बार चलते हुए, पहली बार बोलते हुए देखते हैं, तो उनका सारा स्ट्रेस जो है वो छूमंतर हो जाता है और उनके मन में सिर्फ अपने बच्चे की वो मेमोरेबल जो मोमेंट्स होते हैं वही उन्हें याद रहते हैं। बस हमें भी ऐसा ही करना है। लेकिन होता क्या है, किसी ने बहुत अच्छा कहा, स्ट्रेस जो होता है उसका अपना कुछ भी नहीं होता। स्ट्रेस हैज नो कलर, उसका कोई रंग नहीं होता। वो उसको आप जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाता है। अगर आप स्ट्रेस को पॉजिटिवली लेते हो तो पॉजिटिव बिहेवियर हमारे सामने उसका आता है, लेकिन आप उसे नेगेटिवली लोगे तो वो नेगेटिव स्ट्रेस जो होगा वो नेगेटिव बिहेवियर हमारे सामने लेकर आएगा। आप इसे यूं कह सकते हैं, हम इसे यूं समझ सकते हैं हमारी जिंदगी के अंदर कि यदि हमारे जीवन में स्ट्रेस है तो हम हमारे गोल को, पॉजिटिव स्ट्रेस है तो हम हमारे गोल को अचीव कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने उस स्ट्रेस को नेगेटिव कर लिया, डर गए, भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। अगर ऐसा मन में विचार आ गया तो वही स्ट्रेस, पॉजिटिव स्ट्रेस जिसे यू स्ट्रेस भी कहा जाता है, फिर वही पॉजिटिव स्ट्रेस टॉक्सिक स्ट्रेस बन जाता है और हमारी लाइफ को टॉक्सिक कर देता है, विषैला कर देता है। और उसे विषैला करने के लिए कुछ ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते, एक ही काम करना होता है। वो काम है हमारे अंदर की सकारात्मकता को, पॉजिटिविटी को कन्वर्ट करके हमारे अंदर नेगेटिविटी को रिप्लेस कर देना। आप यदि अपनी लाइफ में देखें, यूट्यूब पे, गूगल पे, किसी पे भी सर्च करके देख ले, क्या नेगेटिविटी के कोई बेनिफिट्स हैं या नहीं, तो आपको एक भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, नुकसान ही नुकसान मिलेंगे। चाहे वो फिजिकल लेवल पर हो, शारीरिक स्तर पर हो, चाहे मेंटल लेवल के ऊपर, मानसिक स्तर पर, इंटेलेक्चुअल लेवल पर, बौद्धिक स्तर पर, चाहे वो मोरल लेवल पर हो, नैतिक सिद्धांतों के ऊपर हो, सब पर केवल मात्र नुकसान ही होता है, फायदा कुछ नहीं होता। और जब हमारा ऐसे बैलेंस बिगड़ता है, हमारे मेंटल लेवल का, इंटेलेक्चुअल लेवल का, फिजिकल लेवल का, प्रैक्टिकल लेवल का, तो जानते हैं फिर ये इनबैलेंस होने वाली स्थिति एक और नेगेटिविटी लेकर आती है और ये नेगेटिविटी इंसान को प्रेरित करती है सुसाइड कमिट करने के लिए। उस समय वो आत्महत्या करने से भी पीछे नहीं हटता। तो क्या करना चाहिए इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए? क्या करना चाहिए बता सकते हैं? एक फेमस राइटर हैं डेल कार्नेगी, वो अपनी एक बुक हाउ टू स्टॉप वरिंग, अपनी इस बुक में लिखते हैं कि यदि आपको अपनी नेगेटिविटी से बाहर निकलना है तो आपको 3 स्टेप्स में जाना होगा। और वो 3 स्टेप्स क्या हैं? 3 स्टेप्स हैं, सबसे पहले आपके सामने जो भी समस्या आई है उस समस्या को एनालाइज करो। एनालाइज योर प्रॉब्लम। जो भी समस्या आई है पहले ठहरो, शांतचित्त होकर उसके बारे में सोचो क्या प्रॉब्लम है। हमारी सबसे बड़ी कमी यह है कि जब भी हमारे सामने प्रॉब्लम आती है ना, हम शांतचित्त होकर के सोचते नहीं हैं, बस यही गड़बड़ हो जाती है। आज से बहुत साल पहले एक अमेरिकन एस्केप आर्टिस्ट था जिसका नाम था हैरी हुडनी। वो इतना माहिर था कि कोई भी हथकड़ी, कोई भी ताला उसे बांध नहीं सकता था। वो चैलेंज किया करता था कि कोई मुझे बांधे, मैं मिनटों में छूट सकता हूँ। कई जेलर्स ने उसे, उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करके अपनी अपनी जेलों में रखा, लेकिन हुडनी हर हथकड़ी, हर ताले को तोड़कर कुछ मिनटों में ही जेल के बाहर घूमता हुआ मिलता। लेकिन हुआ क्या, एक दिन क्या हुआ, ब्रिटिश आइल्स के ऊपर एक नई जेल बनी और उसके जेलर ने हुडनी को चैलेंज किया कि मेरे जेल के ताले को तोड़कर दिखाओ। हुडनी ने कहा मैं चैलेंज एक्सेप्टेड। हुडनी गया, जेल में उसे बंद किया गया। गार्ड्स ने पहले चेकिंग की, फिर उसे अकेला छोड़ दिया। कुछ नहीं मिला हुडनी के पास। और उसके बाद जैसे ही हुडनी अकेला हुआ, उसने जेल के उस ताले को खोलने की कोशिश की, लेकिन ताला सिंपल था। ऐसे ताले आज से पहले वो बहुत बार खोल चुका था, लेकिन आज ये ताला नहीं खुल रहा था। कुछ मिनटों में बाहर निकलने वाला हुडनी आधा घंटा हो गया,
1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, लेकिन बाहर नहीं निकल पाया और वो इतना अशांत हो गया कि उस समय हार मानकर, थक कर, चूर होकर जेल के उसी दरवाजे से पीठ लगाकर बैठ गया। और जैसे ही पीठ लगाकर बैठा तो जानते हैं क्या हुआ? जेल का दरवाजा अपने आप खुल गया। हाँ जी, क्या कहेंगे आप इसे? इससे कहेंगे कि ताला जेल पर नहीं लगा था, दरवाजे पर। ताला कहाँ लगा था? कहाँ लगा था? हुडनी के दिमाग पर लगा था। क्यों? क्योंकि हुडनी के जो गुरु थे वो हुडनी के बिहेवियर से परिचित थे कि कोई भी ताला, कोई भी हथकड़ी हुडनी को रोक नहीं पाएगी। लेकिन एक इसकी कमी है कि रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में ये अशांत हो जाता है। बस इसी कमी का फायदा उठाया और उस समय ताला लगाया नहीं गया था, बस दरवाजे को वैसे ही अटकाया था। हुडनी के सामने जब उसके टाइम का रिकॉर्ड खराब हुआ, अशांत हो गया, बैठकर उसने सोचा नहीं और लाइफ में हमेशा जीतने वाला हुडनी आज लाइफ में पहली बार हार गया। ठीक ऐसे ही जब भी हमारे सामने प्रॉब्लम्स आए, आप जल्दी से रैशनलाइज माइंड के साथ में कोई भी डिसीजन मत लीजिए। सबसे पहले शांत चित होकर बैठिए, सोचिए और सोचने के बाद सेकंड स्टेप जो डेल कार्नेगी कहते हैं वो है कि आप डिसाइसिव एक्शन लीजिए। अच्छे से सोच विचार करके आप एक निर्णय लीजिए और निर्णय लेकर उस पर अडिग हो जाइए। और थर्ड स्टेप कहता है कि आप अपने लिए एक्सेप्ट द वर्स्ट, बुरी से बुरी स्थिति के लिए आप अपने आप को पहले ही मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए, पहले से अपने आप की तैयारी कर लीजिए। बहुत ही अच्छी साइकोलॉजिकल अप्रोच डेल कार्नेगी दे रहे हैं और आज ऐसा ही हमारे साथ भी है। ऐसी ही अप्रोचेस हमें भी मिलती हैं, कभी मोटिवेशनल लेक्चर के थ्रू जैसे आज आप सुन रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आज आपने ये विचार पहली बार सुने हैं, आप अपने लाइफ में इन विचारों को बहुत बार सुनते हैं। आपको कभी कोई प्रॉब्लम आई हो, स्ट्रेस की या डिप्रेशन की, एंजाइटी की, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो भी आपको यही सॉल्यूशन बताएंगे, वो भी आपको यही तरीके बताएंगे और साथ ही आपको कुछ और भी बताएंगे। वो कहेंगे जब आपको स्ट्रेस हो तो प्लीज आप अपने आप को काम कीजिए, शांत कीजिए, आप संगीत सुनिए, पार्क में घूमने के लिए जाइए और भी बहुत कुछ। लेकिन क्या ये सारी टेक्निक्स हमारे ऊपर कुछ फायदा करती हैं या नहीं, इसे समझते हैं एक डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू। हाँ, बस दो वॉलंटियर्स बस स्टैंड उतर जाओ। कितने जलंधर पहुंच गए प्रोग्राम पे खत्म हो रहा मैं जलंधर उतर के आ जाएंगे ਇੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਡੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਆਟੋ ਫੜ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲੋ हाँ कुड़ियां का पालो। ये आपके सामने एक व्हाइट बोर्ड है और इस पर एक कॉटन बॉल को चिपकाया हुआ है। अब थोड़ा सा आगे आ जाइए, सबको दिखाई दे रहा है? सबको यस और नो? यस। अब हमारे पास में ये जो भैया हैं, इस कॉटन बॉल के ऊपर अब उधर से आएंगे, इंक डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? इंक। ध्यान से उसके ऊपर टेढ़ा कर लीजिए, अच्छे से प्रेस करके। अब ये क्या है? ये जो आप कॉटन बॉल देख रहे हैं ना, ये क्या है? हमारा कोर लेवल, हमारा जो बेसिक, जो हमारा जो आधार है वो है। और ये जो इंक आप देख रहे हैं, ये इंक क्या है? हमारी वीकनेस है। आप इसे स्ट्रेस कह सकते हैं, डिप्रेशन कह सकते हैं, एंजाइटी कह सकते हैं। लेकिन जब आप किसी डॉक्टर के पास में जाते हैं तो वो हमें कुछ टेक्निक्स बताते हैं। वो क्या करते हैं? इस वीकनेस को, इस स्ट्रेस को कवर करने की कोशिश करते हैं और क्या उससे फायदा होता है या नहीं वो देखते हैं।
ये टिश्यू पेपर है। थोड़ा सा कर दीजिए इसको, बोर्ड को। अब आप देख रहे हैं यहाँ टिश्यू पेपर चिपकाया गया है। इंक कॉटन के ऊपर थी, अब जब इसे कवर किया तो क्या हुआ? टिश्यू पेपर के ऊपर क्या आ गई है? दिख रही है सबको? दिख रही है। अब एक और टिश्यू पेपर लगा दीजिए। सुनील भी आप थोड़ी हेल्प कर दीजिए भैया की सेलो टेप खोलने में। कड़ा दो ताकि वो खुल जाए। कैसे अब आप देखो ये टिश्यू पेपर चिपकाया गया है। पहली लेयर के ऊपर जितनी इंक दिखाई दे रही थी, क्या अब वो दिखाई दे रही है? उतनी मात्रा में थोड़ी कम हो गई है। एक लेयर और बना दीजिए इसके ऊपर। ज्यादा हो गई। अभी टिश्यू पेपर क्लीन है, इंक नहीं दिखाई दे रही ना? किसी को दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही, क्लीन है। हमारी जितने भी साइकोलॉजिकल अप्रोचेस हैं, जितने भी तरीके बताए जाते हैं, वो ऐसे ही होते हैं। हमारी वीकनेस को कवर करने के लिए वो कुछ मेडिसिन दे सकते हैं, कुछ हमें टेक्निक बता देंगे। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपसे बात की कि अपने प्रॉब्लम को सोचो, शांतचित्त होकर के, फिर उस पर कुछ निर्णय लो, या फिर आप म्यूजिक सुन लो, या आप कहीं घूमने के लिए चले जाओ, कुछ टीवी देख लो, कुछ एंटरटेनमेंट कर लो। ये ऐसी अप्रोचेज है। आपको थोड़े टाइम बाद लगेगा मैं बिल्कुल ठीक हो गया इन सबको फॉलो करके, लेकिन जब फिर से वैसी कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आएगी तो जानते हैं क्या होगा? ये मेरा हाथ, इस समय मान लीजिए ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन है। अब क्या हुआ? जो प्रेशर डाला, क्या हुआ? इंक फिर से बाहर आ गई। थैंक यू वेरी मच। ऐसा ही होता है। ये अधूरी साइकोलॉजिकल अप्रोचेज हैं। इनकी जो पहुंच है हमारे मन तक है, इसकी एक सीमा है। लेकिन फिर ऐसा हमारे जीवन में क्या हो जो सीमाओं से, इस लिमिट से बियॉन्ड हो, इन सीमाओं से अति परे हो? वो एक ही चीज है और वो है अध्यात्म। बहुत साल पहले 19वीं शताब्दी में ही, 19th सेंचुरी के अंदर ही, एक अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिनका नाम था ओलिवर ब्लैक। वो अपनी लाइफ में, उनके पास में सब कुछ था, नेम, फेम, मनी, पर्सनैलिटी, किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन फिर भी वो हमेशा अपनी लाइफ में स्ट्रेसफुल रहते थे। बहुत मेडिसिन ली, बहुत उन्होंने ऐसी साइकोलॉजिकल अप्रोचेस को फॉलो किया, लेकिन फिर भी वो नॉर्मल नहीं हो पा रहे थे। लेकिन एक बार 1931 में, 1931 में ओलिवर ब्लैक की मुलाकात हुई एक पार्टी में योगानंद परमहंस जी से। और जब वो पार्टी में मिले, अपनी सारी समस्या ओलिवर ब्लैक ने जब योगानंद जी को बताई, तो योगानंद परमहंस जी ने उन्हें एक टेक्निक दी, एक तरीका बताया, एक पद्धति दी, प्रोसीजर दिया। और उसके बाद ओलिवर ब्लैक बिल्कुल ठीक हो गए। सारी दवाइयां भी छूट गई और वो मन से हमेशा खुश रहने लग गए। ऐसा योगानंद परमहंस जी ने ओलिवर ब्लैक को क्या दिया? उन्होंने केवल बातें नहीं की थी, केवल उन्हें बाहर से कोई विचार नहीं दिए थे, उन्हें दिया था वो सुप्रीम साइंस, वो परम विज्ञान, जिसे कि डिवाइन नॉलेज भी कहा जाता है। वो अध्यात्म का ज्ञान ओलिवर ब्लैक को योगानंद परमहंस जी ने दिया था, जिसके कारण से ओलिवर ब्लैक जो है वो बिल्कुल ठीक हो पाया। अध्यात्म, इस शब्द को आपने पहले कभी सुना है? किस किस ने सुना है? हाँ जी, बता दीजिए हाथ ऊपर करके।
सभी ने ही सुना है, लेकिन वास्तव में अध्यात्म है क्या? बचपन से सुनते आ रही है ना इस शब्द को। अध्यात्म वास्तव में है क्या? अध्यात्म केवल मात्र कोई बाहरी कुछ एक्टिविटीज नहीं है। अध्यात्म शब्द को तोड़िए, अध्ययन प्लस आत्मा, यानी अपनी सेल्फ कॉन्शियसनेस का कि स्टडी कर लेना ही वास्तव में अध्यात्म है। और जब आप एक बार अपनी सेल्फ कॉन्शियसनेस आत्मा को जान लोगे तो हमारे मन के सारे विकार, हमारे स्ट्रेस, हमारी परेशानियां, वो सब कुछ हमारी लाइफ से दूर हो जाएंगे। एक बार एक मनोवैज्ञानिक जो था, साइकोलॉजिकल एक डॉक्टर, हमारे परम पूजनीय सदगुरु आशुतोष महाराज जी के पास में आया और उसने कहा, महाराज जी मैंने बहुत सारी ग्रंथों में पढ़ा है कि यदि मन को स्वस्थ करना है, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन को लाइफ से दूर करना है, तो आप उसे आत्मा का ज्ञान करवा दो। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आत्मा का इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से क्या रिलेशन है। तो उस समय हमारे गुरु महाराज जी ने मुंडकोपनिषद का बड़ा ही सुंदर एग्जाम्पल, एक जीवन का लाइफ ट्री दिखाया उन्हें। शिल्पा दीदी नेक्स्ट, उन्हें लाइफ ट्री दिखाया और इस लाइफ ट्री के बारे में हमारे गुरु महाराज जी ने बताते हुए कहते हैं, एक बहुत बड़ा पेड़ था, उस पेड़ के ऊपर डाल के ऊपर एक पक्षी बैठा है और निचली डाल पर एक पक्षी बैठा है। दो पक्षी बैठे हैं, लेकिन इन दोनों पक्षियों में बहुत डिफरेंस है। ऊपरी डाल पर बैठा हुआ जो पक्षी है वो केवल देख रहा है, केवल दृष्टा है, देख रहा है, वो कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा, वो निर्लेप है, किसी भी चीज के अंदर इंडल्ज नहीं होता। लेकिन जो निचली डाल पर बैठा हुआ जो पक्षी है, वेरी रेस्टलेस पक्षी है, ये बहुत अशांत है। ये कभी इस डाल पर कूद कर जाता है, कभी दूसरी डाल पर, और कभी उन डाल के ऊपर जो फल लगे हैं, फ्रूट्स लगे हैं, उन्हें खाता है। फल मीठा हो तो खुश हो जाता है, लेकिन जब फल कड़वा हो तो दुखी हो जाता है। तो उस समय गुरु महाराज जी ने इस एग्जाम्पल को लेकर के बताया, ये पेड़ कुछ और नहीं है, ये पेड़ हमारी अपनी ये देह है, हमारा ये शरीर है। ऊपरी डाल पर बैठा पक्षी जो निर्लेप है, किसी चीज में आसक्त नहीं होता, वो हमारी आत्मा है। निचली डाल पर बैठा हुआ पक्षी जो रेस्टलेस है, बहुत अपने जीवन में अलग अलग रसों की ओर दौड़ता है, ये निचली डाल पर बैठा पक्षी हमारा मन है। और ये मन ही बार बार अशांत होता है तो साथ में हम भी अशांत हो जाते हैं। और इस मन और आत्मा के बीच जितना डिफरेंस होगा, जितनी दोनों के बीच में दूरी होगी, उतना ये पक्षी रेस्टलेस होगा। और जैसे जैसे मन रेस्टलेस होगा, इंसान भी रेस्टलेस होता जाएगा, वो भी अशांत होता जाएगा। फिर गुरु महाराज जी ने उस साइकोलॉजिकल डॉक्टर को कहा, साइकेट्रिस्ट को कहा कि जब ये निचली डाल पर बैठा पक्षी मन इस आत्मा को देख लेगा, तो उसे देखने के बाद जब जैसे जैसे उसके उस स्वरूप के ऊपर अपने आप को केंद्रित करेगा, कॉन्सेंट्रेट करेगा, मेडिटेट करेगा, ध्यान करेगा, तो उसकी लाइफ की सारी वीकनेसेस, सारी कमियां, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सब उसकी लाइफ से दूर हो जाएंगे। इसीलिए एक बार फिर से हम हमारे जीवन में केवल बाहरी रूप से अपना इलाज ना करें, बाहरी रूप से अपने आप को मोटिवेटेड ना करें, बल्कि अंदर से अपने आप को स्ट्रांग करें। और कहते हैं ना, जब कोई इंसान अंदर से स्ट्रांग बन जाता है तो बाहर की कोई भी समस्या उसे विचलित नहीं कर पाती। फिर चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी डिफिकल्टी, चाहे कितना बड़े से बड़ा चैलेंज उसके सामने आ जाए। इसीलिए हमें इस आत्मज्ञान की ओर बढ़ना होगा। और ये आत्मज्ञान, ये सेल्फ कॉन्शियसनेस का दर्शन, इसे देखा कैसे जाता है? केवल मात्र एक डिवाइन मेंटोर के थ्रू, या आप उसे डिवाइन मास्टर कह लें, या समय का एक पूर्ण संत सतगुरु कह लें। उसकी कृपा से आत्मा का दर्शन करके इंसान अपनी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर देता है, जैसा ओलिवर ब्लैक ने किया। इसलिए हम भी इसकी ओर बढ़े और अपनी लाइफ को सक्सेस की ओर, सफलता की ओर बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ
साध्वी मेधावी जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतने सरल और इतनी इजी वे में हमारे समक्ष किस तरह हम अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, ये रखें। एक बार जोरदार ताली। कहते हैं पानी को कभी भी छोड़ो तो वो नीचे को बहता है ना। अगर उसको ऊपर चढ़ाना है तो एक यंत्र की जरूरत पड़ेगी। ठीक इसी तरह जब हम मन को छोड़े तो वो नीचे को ही जाएगा। उसे ऊपर चढ़ाना है तो सत द्वारा मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। जोरदार तालियां दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के लिए, जो समय समय पर अपने सामाजिक एवं आध्यात्मिक कार्यों के द्वारा हमें मोटिवेट, इंस्पायर और डी स्ट्रेस करता आ रहा है। जोरदार तालियां दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के लिए। और अगर आप परमानेंट डी स्ट्रेस होना चाहते हैं तो आप हमारे साथ दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के साथ जुड़ सकते हैं। हमारा वीकली सत्संग होता है और आप अपने घर पर भी सत्संग रखवा सकते हैं। आप अपने घर पर माता की चौकी और कोई प्रोग्राम हो रहा है शादी का तो कीर्तन के लिए आप हमें बुला सकते हैं और साथ ही साथ मोटिवेट सेशन के लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। अब मैं बुलाना चाहूंगी स्वामी सजनानंद जी को, स्मार्ट विच के ऑर्गेनाइजर्स को, कि वह मंच के समक्ष आए और साध्वी जी को, साध्वी डॉक्टर कमल भारती जी और साध्वी मेधावी जी को कि फॉर द लैंप लाइटनिंग ज्योति प्रज्वलित के लिए मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि वो स्टेज मंच के समक्ष है। एक जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से आए स्वामी सजनानंद जी, साध्वी जी।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ। ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਨੇ ਤੇਥੋਂ ਜੁਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਬਿਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਮੈਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਓ ਡੀ-ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਮਾਰਟ ਬਿਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਇਨਕਮ ਦਾ ਸੋਰਸ ਇਹ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਪਲਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟਾਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਕਚਰ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਸਾਧਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਮੰਚ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਆਪਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਆਪਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਪਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਆਪਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਚ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੂਬ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, खूब तरक्की करो, खूब उन्नति करो। अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। कोई उच्चा नीवा नहीं है, कोई ज्यादा पढ़िया घट पढ़िया नहीं है, सब ओदे बाग दे फुल ने। चंपा दा फुल अलग खुशबू दिंदा, गुलाब दा अलग दिंदा, चमेली दा अलग दिंदा। ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਕਿੱਲ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਖਮਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀਏ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀਏ, द्वेष ईर्खा ਨੂੰ दूर करिए। पता नहीं ये 4 दिन दी परौनी जिंदगानी है, किथे केड़ी गली केड़ी नुक्कड़ केड़े चौराहे केड़े मोड़ केड़े पिंड केड़े शहर च इन्हें शरीर छड्ड जाना ते जदों बंदा छड्ड के चला जांदा उदों तारीफां ही तारीफां हुंदियां जी, बंदा बहुत चंगा सी, बंदा बहुत चंगा सी, किसे नाल नहीं माड़ा बोलदा सी। पर जिउंदियां जी असीं एक तारीफ दा शब्द कहण तो गुरेज करदे रहंदे। एक दूजिया दियां तारीफां करो, प्रशंसा करो और मैं नूं दूर करके जो साडे संतां महापुरुषां गुरुआं दा उपदेश है ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ खुद दे जीवन ਦਾ भी सुधार करिए ते साडे कर्म तो दूसरे नूं भी लाभ होवे। हमेशा तुसी तंदुरुस्त रहो और खूब अगे बढ़ो। ये स्मार्ट बिज वाकई स्मार्ट है जी, तुसी सारे पहुंचे हो और इन्हां दीयां रणनीतियां भी स्मार्ट ने ते ये खूब अगे बढ़न, खूब तरक्की करो। और जिन्ने साडे युवा साथी ने जरूर अपने मापियां दा सत्कार करो, नशियां तो दूर रहो, ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ आशीर्वाद लो। रब दा दिता आशीर्वाद ते मापियां दा दिता आशीर्वाद दोनों बराबर ने, कोई वध घट नहीं हैगा। इस करके वड्डियां बजुर्गां दे भी आशीर्वाद लैके अपने जीवन नूं सफला करो। मैं दिव्या ज्योति जागृति संस्थान जिस दे संस्थापक ਅਤੇ संचालक सतगुरु ਸਰਬ श्री आशुतोष महाराज जी हैं, संस्थान वालों आप सब नूं ढेर सारियां अज दे इस सैमीनार दीयां शुभ कामनावां देना, मुबारकबाद देना और हमेशा तुसी हसदे रहो, मुस्कुरांदे रहो। तुहाडे बेड़े खुशियां दे नाल भरे रहन, सुखां दे नाल भरे रहन। तुहाडा सारियां दा
ਬਹੁਤ 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 ਧੰਨਵਾਦ। ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਨਮਸਕਾਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ आपने आओ डिस्कस करें ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀ ਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੈਕਚਰ ਆ। ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਏ। ਬੜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਲੈਕਚਰ ਜਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਨ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਉਹ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਸੰਸਥਾਨ ਦਿਵਿਆ ਜੋਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਮੀ ਜਨਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੈਕਚਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਮਾਰਟ ਬਿਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਰਾਜਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਚੀਵਰ ਲੀਡਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਰਿਵਾਰਡ ਅਚੀਵ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸ਼ਿਮਲਾ ਟੂਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਔਕਾਰ ਅਚੀਵਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਗੇ ਮਿਸਟਰ ਰਾਜਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਆਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ
रूबरू हो रहे ने मिस्टर राजन कुमार जी। हेलो, हाँ जी सारे सत श्री अकाल जी। मेरी आवाज आ रही पीछे? अपना सैशन सिर्फ 20 मिनट का रह गया आ ते कुछ एक्टिविटी है, कुछ लोग जो अच्छा पैसा कमा रहे ने उन्हों के बारे दसिया जाएगा। तुहानू प्लान अज शेयर नहीं करांगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। इनकम नू ही शेयर करांगे असीं। स्मार्ट बिज दे विच जदे कोई आईडी लगांदा आ, सारिਆਂ ਨੂੰ पता कितना मिलता है आपां नू? पहली इंस्टॉलमेंट तो कितना आ जाता है? 10%। सारे क्लीयर है जी? यस और नो? कंपनी ने एक दूसरी इनकम होर शुरू की है। वो इनकम है कंपनी दे विच कि जे अगर कोई पर्सन एक महीने दे विच घट्टो घट्ट 20 आईडी लगांदा आ, यानी कि 20 फार्म भरदा आ एक महीने दे विच, ते कंपनी जिस महीने जिन्ना बिजनेस करेगी, मान लो ये दिसंबर महीना चल रहा है, दिसंबर महीने दे विच कंपनी ने टोटल 10 लाख रुपए का बिजनेस किया, तो ओदा जिहड़ा 10% है, 10% कितना पैसा बनेगा अपना? सारे बिजनेस वाले ही हो, कितना बनेगा 10%? 1 लाख रुपया। वो 1 लाख रुपया उन्हां लोकां विच वंडिया जाएगा जिहड़े लोग कंपनी दे विच 30 दिनां दे विच कितनी आईडियां लगाणगे? 20 आईडियां लगाणगे। ते अज डेट कितनी हो गई है जी? कितने हो गई है जी? 3 हो गई है। सिर्फ 2 दिनां दे अंदर अपने विच इदां दे बंदे बैठे हुए ने, इदां दे पर्सन कुछ बैठे हुए ने जिन्हां ने 2 दिन दे अंदर 20 आईडियां लगातियां। मिलना चाहते आप उन्होंने? मिलना चाहते आप उन्होंने? जबरदस्त क्लैपिंग दे नाल भाजी बलविंदर सिंह जी जलंधर तो ने 2 दिनों दे विच 20 आईडी लगाई। सारे लोग खड़े होकर भाजी जी वेलकम करना चाहिए। आ जाओ भाजी। वो हारा वाले भी आ जाओ, आगे आओ जी आओ। हाँ भाजी भाजी बलविंदर सिंह जी 2 दिन दे विच 20 आईडियां लगाईयां हैं। कंपनी का 10% शेयर लैन ली वो तैयार ने। बहुत जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए भाजी बलविंदर सिंह के लिए। समाज के विच बहुत अच्छा नाम रखते हैं। भाजी बलविंदर सिंह जी 2 शब्द भाजी। कितना टाइम हो गया जुड़े? हेलो हेलो, आवाज आ रही सारे? मेरा नाम बलविंदर विक्की है और ज़्यादा नहीं 2-4 दिन ही होए ने जुड़ी है, मतलब कि अपने कंपनी ज्वाइन किए और ये कंपनी बहुत ही वधिया है। इस तो पहले भी मैं कंपनी ज्वाइन कर चुका 4-5। ABC जन सारे घर बैठा, पर स्मार्ट बिज वर्गी कंपनी नहीं और राजन सर वर्गी ये नहीं। तो बहुत थैंक यू। बलविंदर भाजी होना नू हजे तक कंपनी च आया नू 4 दिन होए। 4 दिनों के अंदर पिछले मंथ उन्होंने ज्वाइनिंग की 28 नवंबर नू, ते राती उन्होंने कॉल आया 2 दिसंबर नू कि भाजी मेरिया 20 आईडियां हो गई आ। जो महीने का टारगेट सी वो 2 दिनों ही कर दिता है। व्हाट्सएप नंबर क्या करते उस तो बाद कल्ले बलविंदर सिंह जी नहीं है शेर, साडे विच होर भी बहुत सारे बैठे ने। फिर दोबारा तुहाडी जबरदस्त क्लैपिंग नू उठांदे आ जीवन शर्मा जी, वो भी जलंधर नकोदर दे रहन वाले ने भाजी।
2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 20 ਆਈਡੀਆਂ ਭਾਜੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਕਲੈਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 10% ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ 10% ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। 2% ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। जीवन शर्मा जी ਲਈ क्लैपिंग बहुत अच्छे लीडर ने और बहुत बढ़िया काम करते। शर्मा जी कितना टाइम हो गया कंपनी में ज्वाइन किया और ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए सिर्फ 2 ਤੋਂ 4 मिनट प्लीज सारे दसो। हाय सारा सत श्री अकाल जी। नाम जीवन शर्मा, बेसिकली नकोदर तो बिलोंग करता जी और कंपनी च काम करते लगभग मैंने 9 महीने हो गए और 9 महीनों के 12 लाख रुपया आप कंपनी तो कमा चुके हैं जी। एक गड्डी विन की है टाटा टियागो ते दूसरी गड्डी फरवरी के आटो विन करन जा रहे हैं जी और बड़ा मजा आ रहा काम करके। जिदा बलविंदर भाजी ने दसिया भी पहला काफ़ी कंपनियां कीतियां ते स्मार्ट विज वर्गी कंपनी सानू नहीं मिली और ना ही सानू राजन सर वर्गे MD सर मिले। और जिस तरह गल करते हैं बलविंदर सर की कि बलविंदर जी ने 2 महीनों के 2 दिनों के 20 ज्वाइनिंग लाइया और ये 20 ज्वाइनिंग लाउनियां कोई लीडर के हथ वस में नहीं होंदा। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਅਪਲਾਈਨ ਵੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਅਪਲਾਈਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਔਰ ਅਪਲਾਈਨ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਅਪਲਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਲੈਪਿੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਵਨ ਸਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। और वो टारगेट मैंने कमल भाजी ने कहा कि तुम स्टेज के उत्ते नहीं दसना, वो सीक्रेट है और जिदन पूरा हो जाऊगा उस दिन सारे पता लगूगा जी। ठीक है जी, थैंक यू जी। बड़ा समा ना लेंगे क्योंकि आप लेट काफ़ी हो गए हैं। अच्छा पर्चियां तुसी कोई भी काट सकते, दूसरा भी डॉक्टर यूसुफ का ही निकले। आ जाओ इधर निंदा दीदी प्लीज आओ मरे रुक जाओ हजी भाजी। अच्छा क्षमा देवी ज्वाइन है कि नहीं ज्वाइन? अच्छा नाल ही आया, ज्वाइन नहीं है। अच्छा मंगदरा भाजी बहुत बहुत मुबारक ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸ਼ਮਾ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਫਟ ਨਿਕਲਿਆ ਆ ਜੂਸਰ ਮਿਕਸਰ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਨੇ ਕਰਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਨੰਬਰ ਹੈ 9696669604। किरणदीप कौर डॉक्टर यूसुफ जी की डाउन दे विच नहीं, जबरदस्त क्लैपिंग देना। दीदी रीना दिखते नहीं पे। रीना दीदी आए, दीदी तुसी भी आओ स्टेज। बलजीत दीदी अपने परिवार का काम है, परिवार दे विच बार-बार बुलाना नहीं पैंदा, ऑटोमैटिक तुसी ऊपर आ जा करो। हुण जिहड़ा तीसरा ड्रॉ हैगा या
ਬੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਯੰਗ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਵਾਚ ਲਗਾਈਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਵਾਚ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, 3 ਸਮਾਰਟ ਵਾਚ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਪਰਚੀਆਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ? ਸਮਾਰਟ ਵਾਚ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਪਰਚੀ ਭਾਜੀ ਦੀਦੀ ਬਲੀਜ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨ, ਨੰਬਰ ਹੈ 84 375 922 61। ਲਓ ਜੀ ਸਮਾਰਟ ਵਾਚ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੁਖਵੀਰ ਭਾਜੀ ਚਾਕਲੇਟ ਦਵਾ ਰਹੇ ਆ। अच्छा नेक्स्ट फिर स्मार्ट वॉच ली आ। अगली पर्ची प्लीज कौन कटन जा रहा है? हाँ जी सुजाता जी आ पिंड तलन तो। सुजाता ने ये भाजी ने मिस्टर दीपक कुमार जी आ, रेफरेंस है मिस्टर रामलाल शर्मा, नंबर है 97810 37683 97801 37683 है भाजी इतने चले गए। अच्छा रामलाल शर्मा जी की क्लैपिंग करते हैं भाजी हुणां दी। शर्मा जी ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਆ ਜੰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਤਿਆਰ। ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। नमन जी पिंड तलन तो पर्ची कड्डी उन्होंने अगली स्मार्ट वॉच वास्ते। ये पर्ची निकली है जी बलविंदर विक्की जी या पवन लुथरा जी, रेफरेंस नंबर है 7087707238। कौन है? अच्छा बलविंदर भाजी। अरे बलविंदर भाजी स्टेज से खड़े ने, इन्हें नहीं क्लैपिंग होनी चाहिए। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕੰਪਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੈਟਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ 5 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੈਟਲਾਂ ਦਵਾਂਗੇ। 5 ਪਰਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ? ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੈਟਲ ਦੀ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਨੈਕਸਟ जसनूर सिंह जी, ओके बाबा बकाला तो। ये जी है रितु है, सीमा दा रेफरेंस है, नंबर है 9779503940। इलैक्ट्रिक कैटल दीदी हुणां नूं मिलन जा रही है जी। बहुत बहुत मुबारक दीदी तुहानूं। दीदी केड़ी जगह ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਆ दीदी कपूरथले तो
बहुत बहुत मुबारक दीदी ਤੁਹਾਨੂੰ। रीना रीना मनी होना इन्ना दी निकल गई सीबा दी तो लग गई चार फुट चलो एक बारी तो लगी नेक्स्ट पर्ची दे दियो प्लीज। चलो शुगर है रब दी बड्डिया ते सही संधू चट्ठा तो जशनप्रीत जी पर्ची दे रहे ने सानू। रीतू ने होना नु देनी है अच्छा बलजीत कौर संदीप सिंह मलसिया की टीम चो ने 84,375 92261। अच्छा पर्चियां बाद चेक कर सकते इन्होंने कोई स्टेज वाले की कट्टी जा रही है, कोई भी आके कट सकता है। कहना आपस में गिफ्ट वंडी जा रहे आशा तेरा लास्ट विच है ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈ कोटली गाजरा तो अंश जी मिक्सर जूसर और नहीं हो नहीं ये पर्ची निकली है जी मैडम सुजाता जी, रेफरेंस हरप्रीत जी, नंबर है 98761। सुजाता अच्छा स्टेज पे ही आ लो स्टेज वाले की कट्टी जानी। सुजाता जी स्टेज के ऊपर ही आ, उन्होंने भी इलैक्ट्रिक कैटल प्लीज सारे गिफ्ट करो। हरप्रीत भाजी किधर ने आ जाओ, हरप्रीत जी तुम भी आओ स्टेज पे। हरप्रीत भाई उन्होंने की बेटी है जी सुजाता। नहीं नहीं मेंबर वाले नहीं, मेंबर वाले तो बच्चे हैं, मेंबर वाले सारे मेंबर वाले निकल रहे हैं, मेंबर वाले यार नहीं बना रहे हैं। और जाओ अरे हुन निकलिया नहीं रखता। ओके नेक्स्ट पर्ची कौन कटने जा रहे हैं? और जेडे पहला आए बगैर मेंबर गलत ना कर के अरुणजीत जी मैथ बोलते उन्होंने पर्ची जी कड्डी आ मंगतजीत कौर आ, डॉक्टर फिर यूसफ की टीम चो ही आ। मंगत राम मंगतजीत लो भाजी होना भी ड्रॉ निकला मंगत भाजी होना का नंबर है 98,782 74443। भाजी भी बहुत बहुत मुबारक मंगत जी नू। मंगत भाजी बहुत मेहनती ने, पिंड का कोई इदा का काम नहीं आ जेड़ा इन्हां तो बगैर होवे। पूरा पूरा पिंड इन्हां दी इज्जत करदा है, अच्छा नाम कमाया भाजी उन्होंने। अच्छा नेक्स्ट पर्ची कौन कर रहे हैं? हरनूप सिंह जी मनना तो मनन दोनों। कहना सेटिंग की हुई ये पर्ची जी निकल रही है ना। फिर हरप्रीत भाई उन्होंने टीम चो आ दीदी कुलविंदर कौर आ जाओ दीदी, नंबर 98,761 आ जाओ जी। जबरदस्त क्लैपिंग दे नाल दीदी कुलविंदर जी नाल उन्हां दे हस्बैंड हरप्रीत जी प्लीज आ जान स्टेज पे, इलैक्ट्रिक कैटल लेके जान अपनी। एलईडी क्या कोई बजी मिल गई अभी और 4 एलईडी भी तो है, 4 एलईडियां भी तो है इन्हों जिन्हों जिन्हों के आईडियां लगियां।
ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ 10 ਡਰਾ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਡਰਾ ਹੋਰ ਕੱਢੀ ਆ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ 25 ਕਢਾਉਂਦੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਆ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼। खाना खाओ आप जाके, खाओ खाओ खाना। ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਉਧਰ ਦੀ ਕੱਢੋ ਪਰਚੀ। एक कुड़ी है सुनीता, रेफरेंस पवन लुथरा जी, नंबर है 7719724725। सुनीता लास्ट ड्रॉ सुनीता नु मिलन जा रहा है। भाजी बाकी भी ड्रॉ अपने क्या रहे रेडी। इस तो बाद ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾ ਕੱਢਾਂਗੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਸਿਰਫ ਜੁਆਇਨ ਪਰਸਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਆਇਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਐਲਈਡੀਆਂ ਗਿਫਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਯੂਜ਼ਰ ਜੋ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਐਲਈਡੀਆਂ ਗਿਫਟ ਕਰਦੀ ਆ 32 ਇੰਚ ਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਇਆ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਪਾਂਸਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ, यूजर ਨੂੰ ਤਾਂ एलईडी मिलेगी ਨਾਲ स्पॉन्सर ਨੂੰ ਵੀ एलईडी ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। तो वो तैयारी है भाजी अपनी? हाँ जी तैयारी। आयो रोटी खाओ खाना खाओ आयो आयो खाने। इस तो बाद फिर अपना लंच है ते लास्ट असि ड्रॉ कटांगे। आ इधर आयो अरे इधर आयो ये सीमा का कैटल लिखे ना दा पट्टी दा और ये फोटो मार के पेना। पवन लुथरा जी आ गए बुलाओ ये फोटो खिंचो बैठे जो ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਸਨ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਪਵਨ ਲੁਥਰਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਆ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਹੋਇਆ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਸਟੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਆ, ਬੁਕਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਡਾ ਲੰਚ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਹ ਭਾਜੀ ਪਵਨ ਲੁਥਰਾ ਜੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਆ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਲੈਪਿੰਗ ਭਾਜੀ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਹਾਰ ਵੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਹਾਰ ਵੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ और उस तो बाद तुहानू गल करा ये भी कमिंग सून दे विच ने 90% टारगेट पूरा हो गया। 10% इस मंथ हो जाना। अगले महीने गड्डी आ रही है इन्हां दी प्लीज एलईडी के शो किया जाए। पवन लुथरा जी जलंधर तो पवन लुथरा जी ਨੂੰ मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने 2 शब्द जरूर बोलन। भाजी उन्होंने बहुत हेल्प की अपनी प्लीज। कंपनियां तो बहुत कीतियां, मैंने 25 साल हो गए नेटवर्किंग करदियां, पर एक कंपनी से काम करदियां 4 महीने होए ने जो मजा आ रहा किते नहीं आया। और सब तो पहले इस कंपनी वास्ते तालियां मिल गई। राजन साहब ने बहुत शानदार प्लेटफॉर्म दिता है और एडा वधिया कंसेप्ट है जिहदे नाल मर्जी कंपेयर करके देख लो, सब तो नंबर 1 ते कंसेप्ट है। और मैं चाहांगा एक तालियां अपने अपलाइन श्री जीवन शर्मा जी वास्ते जिन्होंने मैनूं इहदे नाल जोड़िया। और बहुत जल्दी ऐसे महीने भी एक कार बनेगी, मार्च में फिर एक कार बनेगी। बहुत बहुत थैंक्स भाजी तुहाडा। ड्रॉ तैयार है? ओके सुरजीत भाई तुसीं रेडी हो अपना? हाँ जी ओके मैं थोड़ा जिहा ड्रॉ बारे तुहानूं दसदा। ये 10 बॉल आ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਕੱਢਦੇ ਆ 2999 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਡੱਬਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਬਾਲ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਬਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ 0 ਨੰਬਰ,
ਅਗਲੀਆਂ 3 ਬਾਲ 1 ਨੰਬਰ, ਅਗਲੀਆਂ 3 ਬਾਲ 2 ਨੰਬਰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 3 ਡੱਬੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 0 ਤੋਂ 9 0 ਤੋਂ 9 0 ਤੋਂ 9 ਯਾਨੀ ਕਿ 10-10 ਬਾਲਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਡੱਬੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਾਲ ਚੱਕਾਂਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਡੀ ਨੰਬਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਨਾਮ ਕੋਈ ਵੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲਗਾ ਲਓ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੀਵਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆ, ਜੀਵਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਗਰ ਆਈਡੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਆਈਡੀ ਨੰਬਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 4 ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਕਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀ ਨੰਬਰ ਮੈਚ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਅੱਜ 32 ਇੰਚ LED ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੋਂ ਗਿਫਟ ਕਰੂਗਾ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਪਲੱਸ ਉਹਦਾ ਸਪਾਂਸਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਰੈਡੀ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਰਜੀਤ ਭਾਜੀ ਤੱਲਣ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਬੈਕ ਐਂਡ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਡਰਾਅ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਭਾਜੀ ਲਈ ਵੀ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੇਜ। ਸੁਰਜੀਤ ਭਾਜੀ ਆ ਜਾਓ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ। ਪਾਓ ਹਾਲ ਭਾਜੀ ਬਣਾ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਸੁਰਜੀਤ ਭਾਈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੈਕ ਐਂਡ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ। ਹੁਣ ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੋਗੇ ਕੁਛ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਰਾਜਨ ਭਾਜੀ ਤੇ ਸਮਾਰਟਵਿਜ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਪੋਰਟਿਵ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਲਾਸਟ ਡਰਾਅ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਚ ਰੈਡੀ ਆ ਤੇ ਡਰਾਅ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਭਾਜੀ। ਜੀਵਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪਰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜੀ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਰਾਅ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਆ। ਲਾਸਟ ਭਾਜੀ 2 ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੌਣ ਡਰਾਅ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੂਗਾ? ਕੋਈ ਵੀ 4 ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਾ ਲਿਆ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਲਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ 4 ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਾਲ ਚੱਕਣੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਕ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਜੀ ਆ पहली बॉल चक्की है ठीक है। 1 नंबर छोले भटूरे मिल जाएंगे बाहर। क्लैपिंग 1 नंबर किसी का भी ड्रॉ हो सकता है। नेक्स्ट फोर नंबर। नेक्स्ट 1400 अगले पिछू
आठ नंबर लास्ट देखते हैं किन्ना दा 1484 4 नंबर ये ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਰਿਵਾਰਡ ਸੌਰੀ ਗਿਫਟ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਆ 1484 1484 ਨੰਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ 1484 ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ 32 ਇੰਚ LED ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੂੰ LED ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਡਰਾ ਦੇ ਲਈ ਦੀਦੀ ਹੁਣੇ 0 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਨੂਪ ਭਾਜੀ ਦੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਤੇ ਦੀਦੀ ਹੁਣਾਂ ਤੋਂ ਡਰਾ ਕਢਾਣੇ ਆ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਕਢਾਣੇ ਆ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੀਦੀ ਲੈ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਡਰਾ ਅਨੂਪ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ 0 ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਲੈਪਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਣਾ ਇਵੈਂਟ ਦੇਖਣ ਆਏ ਆ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਡਰਾ ਕਢਾਵਾਂਗੇ ड्रॉ कटना इस तो बाद कट लो कोई भी हाथ खड़ा कर सकता कि मैं ड्रॉ कटना चाहना है वो कट सकते फतेहवीर सिंह जी इस तो कोई गल लो जी फतेहवीर जी ने 0 यानी कि 1000 तो नीचे वाला जो नंबर आ वो सेकंड निकलेगा 1000 से थल्ले वाला सुजीत भाई 0 आ गया है अच्छा निकले 9 नहीं आया वो कट 8 आ चुका है ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਚ ਲੱਗਦਾ ਨਾ 9 0 890 जिन्हों का आईडी नंबर 890 आ वो दूसरा ड्रॉ ले चुके हैं प्लीज थैंक यू 0 अच्छा नेक्स्ट भाजी आजो कोई ड्रॉ कटना चाहता है हाँ जी राजकुमार नकोदर तो कह रहे कोई भाई थोड़ा जल्दी आ जाओ भाई बॉल खुल गई इस तो बाद चल गई सारियां बोला कर 4 बारी कर देना 4 बारी कर 4 ड्रॉ करते 4 वाली ने ਅਸੀਂ 4 ਡਰਾ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ LED ਅਸੀਂ ਗਿਫਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਪਾਂਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਫਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 4 वाली करने ਇਹ 2 ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਨੰਬਰ यानी कि 2000 तो ऊपर सीरीज शुरू हो चुकी है फाइव नंबर 2500 सीरीज नेक्स्ट दो नंबर बड़ा साफ चलो कोई नहीं
मंगत भाई आ जाओ, कटना ड्रॉ। 0 नंबर, ये कितना नंबर है? 2520 नंबर कितना दा? हाँ जी नीलम रानी कितों ने? नीलम रानी हाँ जी फगवाड़े तो नीलम रानी बॉबी। अच्छा फगवाड़े तो बॉबी आ, उन्होंने ड्रॉ निकल गया, बैठे हुए ने बिच अपने को। ओके नहीं कोई गल नहीं, दोनों को पढ़ा लो, कोई चक्कर नहीं। हाँ तुसी कर नहीं उदा मैं को टाइम ना लाऊं मैं भी 2 नंबर फिर दोबारा। एट 2800 सीरीज आ गई। अपने को है चलिए 2874 आईडी नंबर, ये चौथा ड्रॉ है। जीवन शर्मा जी इस तो पहला सारे लंच ਲਈ ਜਾਣ, 2 शब्द आ जाओ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ गए हैं। बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ सरपंच साहब। एक बारी ਆਪਾਂ सरपंच मेवा सिंह जी आए हुए ने, भाजी प्लीज माफी चाहते हैं, मैं आ जाओ प्लीज स्टेज से भाजी, भाजी उन्होंने सम्मानित करिए, आ जाओ भाजी। नाल दूसरे गहीरा पिंड तो सरपंच साहब प्लीज तुसी भी आ जाओ प्लीज स्टेज से आ जाओ। ढेरिया पिंड तो भाजी प्लीज आ जाओ। ब्लॉक संमति प्रधान भाजी परमजीत सिंह जी भी आए हुए ने, तो प्लीज स्टेज से आ जाओ भाजी, आप फोटो करा लीए हुण, आ जाओ। ढेरिया तो भाजी सरपंच साहब उन्होंने भी बहुत बहुत स्वागत आ। ब्लॉक संमति प्रधान परमजीत सिंह जी प्लीज स्टेज से आ जाओ भाजी, फोटो कराइए आप। स्मार्ट विज परिवार इत्थे ही रहना चाहिए। आप एक ग्रुप फोटो करानी है स्टेज के उपर, जिहड़े स्मार्ट विज दे विच अच्छा वर्क कर रहे हैं, आप ग्रुप फोटो करावांगे। हेलो स्मार्ट विज परिवार सारा स्टेज के उपर आ जाओ प्लीज। रंजीत दीदी हुणे, हरप्रीत तलन तो, बलजीत दीदी हुणे, सारे ही निंदर दीदी हुणे, भाजी परमजीत सिंह जी कंग साबू तो, अनूप भाजी हुणा दा परिवार हो गया,
प्लीज सारे स्टेज पे आओ, एक आप स्टाफ की ग्रुप करा लीजिए फोटो। हेलो हेलो लेडीज भैन जाणगियां नहीं, भैन उपर ही रहणगियां। आजो 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 कुलविंदर दी आजो आजो आजो। निंदर दीदी तुसी भी नहीं जाना, आजो 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 स्टेज पे आजो। हेलो मेरा भेजे तू बोल पलटा नी मन काट मिलदा मेरे नाल सास ना घरों दे दिल दा दिल दा तमन्ना चले काटियां फूट बोल लादियां मैं खरी यकियां मारी होड़ जवानी देश बेगाना बड़े जिगरे मंद कमारी जितना दे विच बदल देने जेड़े अज बदल देने अपने हिस्से दी दुनिया दे यार सिकंदर ने 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 पुछदे नु आवे लो संगनी पुछदे नु आवे लो संगनी नचदी तो की वारा दिल दा गज होवे ना मंगनी नचदी तो की वारा। लंघण दे टैम हाले जेड़ा लंघदा टाइम छोटी जही चीज थोड़ी देर होर ठहर जा तेरे लिए मैं वड्डी गल बात सोची है रब कहंदा थोड़ी देर होर ठहर जा तेरे लिए मैं वड्डी गल बात सोची है रब कहंदा थोड़ी देर होर ठहर जा तेरे लिए मैं वड्डी गल बात सोची है वड्डी गल बात सोची है। करांगे अपा फर्स्ट क्लास च फर्स्ट क्लास गल आ करोड़ां दी हज़ारां दी नहीं रहनी कमी कोई प्यारां दी ते कारां दी नहीं रहनी जेड़े यार होने नाल ओही पक्के यार उंज गल कमी नवे यारां दी नहीं रहनी इना कालियां रातां नूं किथे खबरां जेड़ी तेरे लिए मैं बर्बाद सोची है रब कहंदा थोड़ी देर होर ठहर जा तेरे लिए मैं वड्डी गल बात सोची है रब कहंदा थोड़ी देर होर ठहर जा मैं वड्डी गल बात सोची है वड्डी गल बात सोची है।
दुनिया ही फैन होगी। तू तां एवें छोटी जही चीज मंगदा, लंघण दे टाइम हाल जेड़ा लंघदा। तू तां एवें छोटी जही चीज मंगदा, लंघण दे टाइम हाल जेड़ा लंघदा। अजे ओदे लई तैयार तैनूं करना, जेड़ी तेरे वास्ते हालात सोची है। रब कहंदा थोड़ी देर होर ठहर जा, तेरे लिए मैं वड्डी गलबात सोची है। रब कहंदा थोड़ी देर होर ठहर जा, तेरे लिए मैं वड्डी गलबात सोची है। रब कहंदा थोड़ी देर होर ठहर जा, तेरे लिए मैं वड्डी गलबात सोची है। वड्डी गलबात सोची है। देखना जहाजां नूं इकोनॉमी दी आस च, घुम्मिया करांगे आपां फर्स्ट क्लास च। फर्स्ट क्लास गल आ करोड़ां दी हजार